Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the nation's top stories. Today marks the Good Friday, a day of profound significance for Christians worldwide. Prime Minister Narendra Modi has shared his reflections on this solemn occasion. Let's take a closer look. Prime Minister Narendra Modi on Friday extended greetings to the nation on the occasion of the Good Friday, remembering the sacrifice of Jesus Christ. In a post on X, he said, "On Good Friday, we remember the sacrifice of Jesus Christ. This day inspires us to cherish kindness, compassion, and always be large-hearted. May the spirit of peace and togetherness always prevail." In many parts of India, particularly in states with significant Christian populations like Kerala, Goa, and parts of Northeast, devotees are participating in the way of cross processions. These processions retrace the journey of Jesus Christ, with participants carrying crosses and stopping at various stations for praise and reflections. Good Friday prayer meeting being held at Sacred Heart Cathedral Church. Churches nationwide are holding special Good Friday services, often featuring readings from the Bible about the Passion of Christ, hymns and veneration of the Holy Cross. Similarly, in Tamil Nadu, special prayers are being offered in churches across the state. We have visuals from such gathering in Salem. On Good Friday, Salem's Infant Jesus Cathedral held a dramatic reenactment Thousands participated in the cross station procession with special praise. The event highlighted the significance of Jesus' sacrifice, observed solemnly across Salem churches. Moving to Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and Public Works Department Minister Parvesh Verma conducted an inspection of key waterlogging prone areas in the national capital, including Minto Bridge, addressing the concerns of waterlogging. Chief Minister Rekha Gupta highlighted the issue that occurred previously when an entire bus got submerged due to excessive water accumulation. She assured that measures are being implemented to prevent a recurrence of such incidents. Automatic pumps have been installed to activate when the water level rises, and dedicated water pump operators will be stationed at the site round the clock during the rainy season to ensure the system functions effectively. कि दिल्ली को वो भयानक वाटर लॉगिंग देखनी ना पड़े, उसका समाधान हम लोग समय से कर लें, और जो व्यवस्थाएं इस पॉइंट पे की गई है, अभी हमने कई जो टेम्पो पानी है उसको यहाँ पे टैंकर पानी के माध्यम से यहाँ पे हमने छोड़ा है, ताकि ये टेस्ट हो पाए कि ये वर्किंग है या नहीं है चीजें। और ऑटोमेटिक पंप अब यहाँ पे लगा दिए गए हैं कि एक लेवल तक पानी आते ही तुरंत वो जो पंपिंग
The Maharashtra government's decision to make Hindi a compulsory third language from first standard to fifth standard in Marathi and English medium schools, in line with the National Education Policy 2020, has drawn criticism from Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut. Reacting strongly, Raut accused Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis of playing politics under the pretext of promoting language. He asserted that Fadnavis must remember he is the Chief Minister of Maharashtra, where Marathi holds pride of place as the state's official language and the mother tongue of its people. Raut insisted that Marathi should be made compulsory instead of Hindi, emphasizing that Marathi is the foremost language in the state. Speaking on the relevance of Hindi, Raut said there was no need to teach Hindi to the people of Maharashtra, especially in Mumbai, which is the heart of India's Hindi film industry. We all watch Hindi films, listen to Hindi songs. What more Hindi will you teach us? He asked. He concluded by affirming that while Hindi is the Rashtra Bhasha and deserves respect, Marathi should not be sidelined in its own state. हिंदी जो भाषा है उसको कंपलसरी कर दिया गया है और कल देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में बयान दिया। क्या लगता है कि पहले देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री, वो अपनी राजनीति भाषा के आड़ में करना चाहता है। सबसे पहले वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज्यादा कुछ होता नहीं। नौकरी, उद्योग, व्यवसाय, आर्ट, उसमें मराठी का सम्मान रहना चाहिए। उस बारे में कुछ करो, बाद में दूसरी भाषा। और बात रही हिंदी की, भैया हिंदी हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, खास करके महाराष्ट्र में। इस मुंबई शहर में देश का सबसे बड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है और यहाँ से हिंदी गाने, हिंदी फिल्में, हिंदी स्क्रिप्ट बनी जाती है। हम सब हिंदी गाने गुनगुनाते हैं, हम हिंदी फिल्में देखते हैं। हमें आप क्या हिंदी सिखाओगे भाई? एजुकेशन में, शिक्षा में ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जरूर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। सभी भाषाओं का सम्मान रहना चाहिए, चाहे राष्ट्रभाषा हो चाहे रिंदल भाषा हो, सबका सम्मान इस देश में रहना चाहिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है? हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है। तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। यहाँ मराठी का दर्द इतना अपमान हो रहा है। अब बीजेपी का नेता क्या घाटकों पर भी जाता है और कहता है यहाँ की भाषा गुजराती है। क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? ऐसे हर जगह पे जाएंगे, यहाँ की भाषा सो एंड सो है, धारावी की भाषा अलग है। आप एक सुर में कहिए महाराष्ट्र की भाषा, मुंबई की भाषा मराठी है। बाद में हिंदी की बात करो, बाद में अंग्रेजी की बात करो, बाद में उर्दू की बात करो। यहाँ तो स्कूलों में गुजराती पढ़ाई जाती है, तेलुगु पढ़ाई जाती है, कन्नड़ पढ़ाई जाती है और देश के बहुत से प्रांतों में मराठी पढ़ाई जाती है। आप पहले अभ्यास। While addressing a press conference in Delhi, BJP MP Anurag Thakur raised serious allegations against the Congress party, claiming that it has a debt of 90 crore rupees but assets worth 2,000 crore rupees. Thakur highlighted the transfer of these assets to Young India after its formation, noting that the assets valued at 2,000 crore rupees were transferred for just 50 lakh rupees. He also pointed out that the remaining loan of 89.5 crore rupees was waived off by the Congress. Thakur questioned the legality of such financial dealings, asking whether a political party can give loans and, if so, whether interest was charged on that loan. The allegations have sparked controversy, raising concerns about transparency in political finances. और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद
मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़ 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और लोन दिया तो क्या उस पर ब्याज भी लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? अब नेशनल हेराल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, ये दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेराल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा मीन्स विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। तीसरा, ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध, अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन, वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर is getting much more amount than the daily newspapers, and a paper which is not even published at times. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami attended a state-level workshop on the Waqf Amendment Act 2025 at the BJP office. The workshop focused on the key provisions of the amendment aimed at strengthening the management and administration of Waqf properties. Chief Minister Dhami's presence underscored the state's commitment to ensuring that the updated legislation benefits the community while addressing long-standing issues related to Waqf properties in the region. The event also saw active discussions about the Act's implications and its role in promoting transparency and accountability. हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी मुकेश कोहली जी भी मंच पर विराजमान हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सादाब शमसी, अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने अतिथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जी, आदरणीय संगठन मंत्री जी।
Addressing the ongoing protest against the Waqf Bill, Haryana Chief Minister Naib Singh Saini stated that the entire Muslim community stands in support of the revised legislation. He alleged that the opposition to the bill is coming from those who oppose the political strategies were rooted in the original version. Chief Minister Saini criticized Congress party for hastily introducing the earlier bill for vote bank politics without properly assessing its negative implications. He emphasized that the revised bill corrects those flaws and, as a result, is now gaining public support, including from within the Muslim community. पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है, क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है, क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्त बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक In Raipur, Chhattisgarh, Deputy Chief Minister Vijay Sharma addressed the ongoing CGPSC scam, stating that the situation under the previous government was well known, where wealthy individuals' children often passed while hard-working youth struggled. He recalled that the BJP had promised a CBI probe if it came to power and expressed satisfaction with the CBI's recent actions. Sharma highlighted that the CBS raids at 5 locations in the second phase of the investigation had uncovered shocking revelations, reaffirming the government's commitment to addressing the issue. जाएगा कि सेंट्रल की एजेंसियां आती हैं और गड़बड़ करती हैं और लोगों को डराने धमकाने और दबाने के लिए कर रही हैं। मुझे आप ये बात बताएं कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी, मैंने गजब सरकार थी भाई। अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके। ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवाओं के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है, ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं, पूरी संस्थाएं बर्बाद होती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद होती हैं। देश In a significant breakthrough in Chhattisgarh's anti-Naxal operations, 22 Naxals including 9 girls and 13 boys surrendered to security forces in Sukma district. The surrender was a result of a coordinated operation involving several battalions of the Central Reserve Police Force and the DIG officers from the Sukma and Jagdalpur. Officials hailed the development as the major step forward in restoring peace in the insurgency-hit region and rehabilitating youth who had been influenced by extremist ideologies. Security forces continue their efforts to bring more Naxals into the mainstream through surrender and rehabilitation policies. आज 9 महिला नक्सली सहित 22 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसमें मार डिवीजन, नुआपड़ा डिवीजन, उसके अलावा बटालियन और सुकमा जिले में जो विविध आरपीसी जनता सरकार के संगठन हैं उसके अध्यक्ष व सदस्य द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है नक्सलियों की, वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है।
इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सल ग्राम पंचायत मुक्त सदस्य नाम की भी योजना अब नई आत्मसमर्पण पॉलिसी में आई है, उसके अंतर्गत भी इसमें सरेंडर किया जा रहा है। ये अलग अलग रैंक के हैं। नक्सलियों पे लगभग 40 लाख का इनाम है और कुछ नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 5 लाख का इनाम है। रैंक इसमें डीवी से लेके एसीएम से लेके जो मिलिशिया कमांडर है यहाँ तक रैंक इसमें नक्सली सम्मिलित है। आज 9 महिला नक्सली सहित 22 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है उसमें मार डिवीजन, नुआपड़ा डिवीजन, उसके अलावा बटालियन और सुकमा जिले में जो विविध आरपीसी जनता सरकार के संगठन हैं उसके अध्यक्ष व सदस्य द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों द्वारा जो उनकी विचारधारा है नक्सलियों की, वो जो खोखली विचारधारा से तंग होकर आज आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद नक्सलियों को कौशल्य विकास और अन्य जो शासन की योजना है और आत्मसमर्पण नीति के लाभ है उसके तहत उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा नक्सल ग्राम पंचायत मुक्त सदस्य नाम की भी योजना अब नई आत्मसमर्पण पॉलिसी में आई है, उसके अंतर्गत भी इसमें सरेंडर किया जा रहा है। ये अलग अलग रैंक के हैं। नक्सलियों पे लगभग 40 लाख का इनाम है और कुछ नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 5 लाख का इनाम है। रैंक इसमें डीवी से लेके एसीएम से लेके जो मिलिशिया कमांडर है यहाँ तक रैंक इसमें नक्सली सम्मिलित है। आज 9 महिला नक्सली सहित 22। In Ahmedabad, Gujarat, Congress leader Mukul Wasnik addressed the ongoing support of the Bohra community for the Walk Act, stating that the matter is currently before the Supreme Court. He informed the public that hearings are underway and the Government of India has committed to responding to the court's questions within 7 days. Wasnik emphasized that the issue now lies within the jurisdiction of the judiciary, urging patience as the legal process unfolds. He also noted that various questions have been raised regarding the Walk Act and the public must await the apex court's decision. देखिए, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, वहां पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत सरकार ने ये कहा है कि 7 दिनों के भीतर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के समक्ष रखे हैं उस पर वो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मामला चल रहा है, इंतजार करिए। सारा मुल्क जानता है कि तरह तरह के सवाल इससे उठ रहे हैं। अब ये न्यायपालिका के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। देखिए, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, वहां पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भारत सरकार ने ये कहा है कि 7 दिनों के भीतर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के समक्ष रखे हैं उस पर वो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मामला चल रहा है, इंतजार करिए। सारा मुल्क जानता है कि तरह तरह के सवाल इससे उठ रहे हैं। अब ये न्यायपालिका के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने। देखिए, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, वहां पर सुनवाई। Union Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized the long-awaited need for the development of Jodhpur Airport, citing the city's growing export potential. He explained that for the past 3 decades, Jodhpur's residents have dreamt of an upgraded airport to accommodate the city's expanding industries, including handicraft, steel, textiles, agrochemicals, stone, engineering and chemicals. Shekhawat noted the increasing activities in the region. Expanding the airport has become a critical necessity. He stressed that modern infrastructure will enable better connectivity and support economic growth in the area. जोधपुर वासियों का लगभग पिछले 3 दशक का यह सपना कि हमारे जोधपुर का एयरपोर्ट का विकास हो सके। जोधपुर में जिस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जिस तरह का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, हैंडीक्राफ्ट का उद्योग, स्टील का उद्योग, टेक्सटाइल का उद्योग, एग्रोकेमिकल का उद्योग, स्टोन का उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री और उन सब का एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इसके साथ साथ में जोधपुर में सारे हायर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एम्स से लेकर के, एनएलयू से लेकर के, आईआईटी से लेकर के, फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से लेकर के, फैशन डिजाइनिंग तक के सारे इंस्टीट्यूट, उन सब के चलते हुए जोधपुर का में एयरपोर्ट का विकास हो, विस्तार हो, इसकी आवश्यकता अनेक वर्षों से महसूस की जा रही थी। जोधपुर क्योंकि हार मरुस्थल का गेटवे है, उस दृष्टिकोण से भी जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार की अनेक वर्षों से जोधपुर को प्रतीक्षा थी। जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार 2 तरह से बाधित था।
या मैं कहूँ दो तरह की कमियां थी। एक जोधपुर के एयरपोर्ट पर लैंड की कमी थी, जमीन की कमी थी, क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक रूप से केवल सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में था, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एयरफोर्स के पास था आज़ादी के बाद से। और दूसरा, जोधपुर एयरपोर्ट पर कैटाई 3 सिस्टम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक लैंड जो है ऑटोमेटेड लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं थी, उसके कारण से नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती। आज 10 साल बाद में लगातार प्रयास करने के बाद मैं यहाँ बैठकर पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित भारत बनाने के लिए, फ्यूचर रेडी बनाने के लिए पूरे देश भर में रेल, हवाई, जल मार्ग और सड़क मार्ग, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन का काम किया। हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी, नए हवाई अड्डे बने, हवाई अड्डों का मॉडर्नाइजेशन हुआ। उस क्रम में निश्चित रूप से जोधपुर का भी होना था, लेकिन जोधपुर के एयरपोर्ट के विस्तार में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी यहाँ जमीन की अनुपलब्धता। और मैं आज इस अवसर पर जब मैं यहाँ पहली बार इस नए एयरपोर्ट के भवन के इस मुकाम तक पहुँचने के बाद में आज जब मैं हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सब सम्मानित सदस्यों के साथ जब यहाँ आया हूँ, मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब को। जब वो रक्षा मंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जब मैं उनके पास में इस विषय को लेकर के गया था कि जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमको जमीन की आवश्यकता है और इस तरह का संकट है, इतने वर्षों से एयरफोर्स के साथ में हमारा ये विषय लंबित है, नहीं हो पा रहा है, उन्होंने Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English. తెలుగు రాష్ట్రాలను పట్టి